آئیے ایک شعر پڑھنے کی اجازت دے اور استاذ الاساتذہ جن کے سامنے میرے دوستو ہم لوگوں نے چٹائی پہ بیٹھ کے انہیں سنا ہے. قاری مزمل حیات صاحب بھی شروع میں انہی کی نقالی کر کے یہاں تک پہنچے، اور یہ حق ہے. ہمارے عقیدے میں علماء دیوبند کا سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم شاعر اگر کوئی ہے میرے دوستو وہ قاری جمشید جوہر صاحب ہے. میرا دل نہیں یہ چاہتا کہ ان کے سامنے میں یہ سب قصیدے پڑھوں، چونکہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، تو اس لیے کبھی ڈر لگتا رہتا ہے کہ یہ سب نہیں کروں، لیکن حقیقت کہنا چاہیے. اس دور کے اندر، دور پرفتن کے اندر، جہاں ہر طرف رنگینیاں ہیں، میں نے دیکھا ہے میرے دوستو کئی روز رہ گئے ساتھ میں، نماز تو چھوڑیے، حضرت کی تہجد نہیں جاتی. ہم شاعروں کو عبرت ملتا ہے، ان سے سبق ملتا ہے. واحد ایسے شاعر ہے میرے دوستو جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ دین دنیا دونوں بن گئی. اور حضرت مولانا شاہ احمد نصر بنارسی، خلیفہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی اپنی خلافت سونپتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. آپ اس کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں، یہ وہی قاری جمشید جوہر صاحب ہے جنہوں نے یہ کبھی کہا تھا، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، نعت کہتا ہوں تو یارو مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ اللہ. لکھنؤ کی ادبی سرزمی پہ میرے دوستو جب انہوں نے پڑھا، بڑے بڑے شعراء وہاں بیٹھے تھے. کل صبح میں جب پیپر کا مضمون بنتا ہے، ہیڈنگ سنہرے اکچھر میں لکھا جاتا ہے، تو یہ کلام لکھا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا سید ارشد مدنی، محمود مدنی صاحب، دیگر بڑی بڑی شخصیات ملک ہندوستان کے چیدہ منتخب الانتخاب جو بھی علماء کرام ہیں، ان کے موجودگی میں جب میں جوہر صاحب کا یہ شعر پڑھتا ہوں، میرے دوستو نعت رسول کہنے کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے. دل عشق نبی میں خوب تڑپتا ہے، تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں، کوئی اچھا سا مطلع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. مجھے یاد آتا ہے جوہر صاحب کا ایک شعر ہے کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے، تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور میں مرا نہیں ہوں لوگو تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے. میں مرا نہیں ہوں لوگو. تم اچھے شعر پہ اتنے ہی داد ملتے ہیں، مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے. اب چند لوگوں نے بولا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ لوگ سمجھ نہیں رہے، مجھے معلوم ہے کہ میں ایسا شعر سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ مراقبے میں جا چکے ہیں اور اس شعر کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اچھے شعر کو ہنگامہ کے ساتھ نہیں، اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ سنا جاتا ہے. میرے تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میں مرا نہیں ہوں لوگو تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے، میں نہ جشن کیوں مناؤں کہ میری جیت ہو گئی ہے، میں نہ جشن کیوں مناؤں کہ میری جیت ہو گئی ہے، میرا نفس مر گیا ہے دو دو ہاتھ کرتے کرتے، میں نہ جشن کیوں مناؤں. یہ اکابر علماء کرام اپنے دل کی دنیا سے ٹرانسفر کر کر دامن حبیبی میں اس لیے دعا ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ شعر تو جوہر صاحب کا ہے لیکن انداز مجاہد کا ہے. یہ بھی میرے دوستو تو یہ شعر ہے. میں پوری رات ختم کر دوں ان کی شاعری سنا کر، لیکن وہاں تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں. کل تو شاید 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی مشاعرہ ہے. 7 کلومیٹر ہے جی. کہاں پہ ہے؟ ہاں تو یہ مائک والے کو ضرور لے چلیے گا. بھائی صاحب بہت اچھا کیا بھائی، ماشاءاللہ. ہاں یہ مائک والے ضرور رکھے، چونکہ مائک اور سب سے بڑی بات صدر ہمارے جو کیا کہتے ہیں عبد القدیر صاحب اور بھائی فیروز صاحب اور کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں، بچے بوڑھے جوان، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ناگپور والوں آپ نے پروگرام تو کرایا ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا کامیاب پروگرام پہلی بار ہوا ہے. جب بھی مومن پورا کی تاریخ رقم کی جائے گی انشاءاللہ اس نعتیہ منقبتی مشاعرے کو فراموش نہیں کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون رہا تو مشاعرہ اس سے بڑا ہوگا اور بڑے بڑے عشاقان مداح رسول کو یہاں بلایا جائے گا اور انشاءاللہ اس طرح سے نبی کی ذکر کی محفل ہم لوگ لگائیں گے. تو مجھے اجازت دے ایک حوالے سے میں جانا جاتا ہوں. الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کو نبی کی شان میں بڑی محنت سے میں نے اس کو لکھا ہے. اس پر تو کتنے لوگوں 29 حرف ہے اس میں، یہ حروف تہجی.
कितने ने तो 1000 500 के नोट लाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लेके आएँ, लेकिन मैं ये कहेंगे कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के मेरा हाथ उठ जाए तो आप लोग कहेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। अगर कोई इस बीच में लेके भी आएंगे तो हम मना भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ और आपसे दुआएं लेना चाहता हूँ। कन्वीनरों का हुक्म है और जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब, सदारत बड़ी लाजवाब है। मेरे दोस्तों, मुशायरा नाकाम होता है तो 2 आदमी के सर पे सेहरा बांधा जाता है नाकामी का, या तो फिर नाजिम मुशायरा को या सदर मुशायरा को। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात यह है कि सदर बड़ा लाजवाब है। नाजिम के बारे में फैसला आप लोग करेंगे, मैं अपने बारे में नहीं कुछ कह सकता। हाँ, लेकिन एक शेर पढ़ दूं सदर साहब के हवाले से, इजाजत है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूं तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया मगर पटना में रहता हूं। खुदा का शुक्र करता हूं सुकूनत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर शफीक साहब पर सदारत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर शफीक साहब पर सदारत नाज करती है। मैं हूं माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं इतनी तेज चलता हूं मुसाफत नाज करती है। मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है। अल्लाह का करम है। तो इजाजत, अगर बोल के सुनेंगे तो 2-3 मिनट लगेगा तसलसल, लेकिन कलेजे का खून जो है बहुत सूखता है उसमें, तो आपकी दुआएं मिलेगी तो इंशाल्लाह एनर्जी मिल जाएगा। जी, मैं तमाम असतज़ा का भी और सीनियर जूनियर तमाम शायरों की तवज्जो चाहता हूं। मेरे दोस्तों, एक बात बताता चलूं कि वो न आए होते तो दरिया को तुग़यानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो न आए होते तो आंखों को बीनाई न मिली होती। मियाँ कहने दीजिए मुझे कि वो ना आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता। वो ना आए होते तो मेरे दोस्तों रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयसर न हुए होते। कहने की इजाजत दीजिए, वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिये पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। भाई जैद साहब, आप चले जाएंगे, मैं नहीं सुना पाऊंगा। बड़ी नहीं, पहले सुन लीजिए थोड़ी देर, कोई काम हो बंद कर लीजिए थोड़ा। भाई बड़ी मेहनत से मैं सुना रहा हूँ, थोड़ी बहुत शायर उसमें चाहता है। आप ही लोग की दाद की बदौलत तो हम जिंदा है, वरना क्या कुछ है। इतने दूर से घर द्वार को छोड़ के लोग आता क्यों है। खैर देखिए हजरात, मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पे पैदा करता है तो सर से लेकर पांव तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर या तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं, हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं कुएं पे पानी लाने अपने सहेलियों के साथ जब जाती हूँ तो कुएं का पानी उछल कर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा बतन में आया है, रात की तारीकी में जब मैं सोती हूँ, ये चांद सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा बतन में आया है, मेरा बदन महकता है, गली महकती है, घर महकता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही, तेरा बदन इतना महकता क्यों है? इतना महंगा इतर तो कहां से लगाई है? हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर, जब से यह बच्चा मेरे बतन में आया है, मेरे पेट में आया है, मेरा बदन महकना तो दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, गली का महकना दूर की बात, आमा मैं जहां थूक देती हूं वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कुरान करीम में देखे मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साकिब बना दिया। अल्लाह ने जिम लिखा
कुरान में, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्मुर रसूल बना दिया। अल्लाह ने दाल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने जाल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया। अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जाहिद बना दिया। अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया। अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया। अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में, नबी को जामिन बना दिया। अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने जा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया। अल्लाह ने आयन लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में, नबी को गुयूर बना दिया। अल्लाह ने फा लिखा कुरान में, नबी को फातिहुल मक्का बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में, नबी को लईक बना दिया। अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में, नबी को मसीह बना दिया। अल्लाह ने नून लिखा कुरान में, नबी को नजीर बना दिया। अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में, नबी को वाइज बना दिया। अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने या लिखा कुरान में, नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान, शुक्रिया, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। ये अब्दुल महबूद साहब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, राहत इंदौरी कहते हैं कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे और याद आते हैं कि हदे शूर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया। लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। ये नबी की शान है मियाँ। मेरे दोस्तों, असातिज़े कराम जब अपने दुआओं से नवाजते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर एक हुआ करते थे, बहुत बड़े अदीब का नाम था। निज़ामत के कुछ तरीक़े मैंने उनसे भी, अनवर साहब से भी वो सीखे। तो वो कहा करते थे कि बेटा जब पढ़े लिखे मजमे के अंदर तुम अच्छे से पढ़ना, तो चंद पढ़ी लिखी आंखों में जब चमक आ जाए तो समझ जाना तेरे शायरी की मेराज हो गई बेटे। ये कोई ज़रूरी नहीं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे सुनते हैं। मैं शिकायत ये करूंगा थोड़ा सा कि जैद भाई ने मुझे बहुत देर में यहाँ बुलाया, इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया, बहुत पहले मिलवाना चाहिए था आपसे। चलिए, मेरी पहली मुलाकात इंशाल्लाह ये दोस्ती में तब्दील हो गई है। अल्लाह करे कि जन्नत में भी हम लोगों को इसी तरह सामने यूं ही बैठा है, हम नाते रसूल पढ़े और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कहें। आइए, कारी जमशेद जौहर साहब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं और निहायत ही अदब एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं, सिर्फ ये जुमला कहते हुए कि तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं, तब बड़े अदब और एहतराम के साथ उनका नाम लिया जाता है। उस्ताजुल असातिज़ा कारी जमशेद जौहर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ जौहर साहब का इस्तकबाल है। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अब जनाबे शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है।